recording. Students in foundation course, there is no internal exams. Okay. Instead of internal exams, what we do is we ask the students to prepare the project. Okay. And that project is based on the topic from your textbook. Okay. Which is growing social issues in India. Okay. There are so many things that are already covered in the textbook, like alcoholism, drugs, and violence against women. Then there are topics like uh, yes, एक सेकेंड ना, और क्या टॉपिक्स है आपके टेक्स्ट बुक में? बहुत सारे टॉपिक्स है ग्रोइंग सोशल इश्यूज के बारे में, एल्डरली इश्यूज, ओके, कि हाउ एल्डरली पीपल इन इंडिया आर सफरिंग सिंस देयर चिल्ड्रन लीव देम अलोन। फिर उसके बाद में और क्या टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक में? ट्रैफिकिंग, वुमेन ट्रैफिकिंग के ऊपर है। Okay, so you can refer your textbook. All right, if you want, I'll tell you, आपके ना टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 169 पे, वहां पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ओके, यू कैन चूज एनी टॉपिक। अल्कोहलिज्म, जैसे कि उसके बारे में इंट्रोडक्शन, कॉजेस, इफेक्ट। ड्रग एडिक्शन है आपके टेक्स्ट बुक में, HIV एड्स के बारे में है, स्मोकिंग है, प्रॉब्लम्स ऑफ द एल्डरली, प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज, ट्रैफिकिंग ऑफ विमेन। कोई भी टॉपिक जो आपके पसंद का हो, okay, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, you can take up that topic. Okay, and then I'll just share the screen. Okay, 31st अक्टूबर से आपके वेकेशंस होंगे, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये प्रोजेक्ट वर्क है ना, उस टाइम पे कंप्लीट कर लेना। Okay, it's a very simple project. Okay, there are a few guidelines that I have already prepared. Okay, just 1 minute, I'm opening that. आपको वो प्रोजेक्ट के ऊपर अभी से ही काम करना स्टार्ट करना है, सो दैट यू नो यू कंप्लीट इट बिफोर द डेडलाइन एंड यू सबमिट। Okay, so your internal exams won't happen for foundation course, and you have to submit your project. Okay, just 1 minute as it is opening. Like document. I hope the screen is visible and you can see the screen. Right, students? Yes, ma'am. Okay. Right, just a moment. See, okay. Your step one is select the topic of your own choice. Okay, topic can be anything. Okay, anything from the textbook or any other growing social problem that you feel which is not covered in the textbook, but you want to make a project on that, you can definitely make. Okay, so your step one is select a topic of your own choice. There is absolutely no restriction. However, your topic should be, you know, somewhere around social issues. Okay, growing social issues in India. Okay, उसमें से आपको जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है, आप जो पसंद है, आप वो टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो। आप मेंशन हियर दैट यू कैन रेफर द टेक्स्ट बुक also for the topic. Your step 2 is you're going to create a Word document and start working on collecting information and pictures that are relevant to the topic. Okay, you will start, you can use the इंटरनेट ऑल्सो फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई और रेफरेंस बुक से, टेक्स्ट बुक से डेटा यूज करना है, यू कैन डू दैट। ओके, स्टार्ट कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। ऑल्सो यू कैन यूज सम पिक्चर्स एंड इमेजेस, ग्राफ और समथिंग लाइक दैट टू मेक योर टॉपिक लुक, टू मेक योर प्रोजेक्ट लुक इंटरेस्टिंग। यू कैन डिवाइड द टॉपिक इनटू सब पार्ट्स, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, उस टॉपिक से रिलेटेड लेटेस्ट सिनेरियो क्या है। Okay, you can give your conclusion and suggestion also. Minimum 10 pages. Okay, you see this, minimum 10 pages होना चाहिए. It can including pictures and graph. Okay, so minimum 10 pages should be there. Your first page of the project should strictly use this common format. आपका first page of the project है ना, उसके अंदर कॉलेज का नाम आएगा, सब्जेक्ट का नाम आएगा, क्लास, रोल नंबर, नेम, योर HSC परसेंटेज एंड योर टॉपिक नेम।
ओके, देन स्टेप 3, यहाँ तक आई होप देयर इज नो डाउट। स्टेप 1 था सिलेक्ट योर टॉपिक, स्टेप 2 था वर्ड डॉक्यूमेंट में टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट, पिक्चर्स, इमेजेस, ग्राफ जो भी है आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में डालते जाओगे। आपका टॉपिक है ना एक एकदम पैराग्राफ जैसा नहीं होना चाहिए। यू शुड मेक सब पार्ट्स ऑफ इट, लाइक you can keep a part which is introductory, you can keep a part which is like pauses, implication है. Okay, so make sure that your topics are having sub parts. Okay, after that you are going to make sure that your at least 10 pages are completed. You can of course make more than 10 pages, absolutely no problem, but minimum 10 pages should be there. Okay, when you start your project, your first page should strictly be this. मैं तो बोलूंगी यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करो, इधर से कॉपी करो, वर्ड में पेस्ट करो और इधर एंटर करते जाओ। क्लास क्या है? FIBMS। प्लीज मेंशन डिवीजन आल्सो, A या B डिवीजन। ओके, देन रोल नंबर, योर नेम, योर परसेंटेज इन HSC, एंड देन जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है वो टॉपिक का नाम। आफ्टर योर प्रोजेक्ट इज डन, यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट में जब आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है, आपने प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर लिया है, उसके बाद में प्लीज कन्वर्ट द वर्ड फाइल इनटू PDF। ओके, जिसको नहीं आता है गूगल पे जाके यू कैन जस्ट टाइप कन्वर्ट द वर्ड फाइल इनटू PDF। इट विल आस्क यू टू ब्राउज, आप ब्राउज करके आपका वर्ड डॉक्यूमेंट को वहां पे पेस्ट करेंगे एंड कन्वर्ट टू PDF करेंगे। Okay, and then you have to mail it on this mail ID, which is sngcproject2021@gmail.com. आपने मेल कर देने के बाद में यू हैव टू इंटीमेट योर ग्रुप लीडर। ये वाला पार्ट रहने दो, स्टेप 4 बाद में देखते हैं। आई हैव टू स्टिल अपॉइंट द ग्रुप लीडर फॉर प्रोजेक्ट, so right now we skip this step. Okay, ये वाला step skip कर देते हैं। There are few important things that you need to note down. Please do not send me mail without attachment. बहुत टाइम क्या होता है ना, स्टूडेंट्स अटैचमेंट भूल जाते हैं। Don't do that. Okay, make sure that the attachment is there. Don't send the project on the mail again and again. Otherwise, my mailbox में बहुत सारा spam हो जाएगा. So please don't send the project on the mail again and again. Just send me once. Okay. कुछ students है ना ऐसे doubtful होते हैं, मैम को गया कि नहीं project, तो 10 times mail कर देते हैं. Kindly don't do that. Your project should be strictly in PDF format only. Please do not send me Word document, send me PDF. Strictly follow the format. कौन सा वाला format? ये जो मैंने आप लोग को दिया ना first page का format, strictly वैसा ही होना चाहिए. While mailing, the subject line should be FC project. के कुछ स्टूडेंट्स है ना सब्जेक्ट लाइन नहीं लिखते हैं, वैसे मत करो, FC प्रोजेक्ट करके सब्जेक्ट लाइन लिखना है। प्लीज यूज ऑफिशियल मेल ID. Why I am writing ऑफिशियल मेल ID? बहुत सारे स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, मेल ID में ना बड़े अजीब से उनके मेल ID होते हैं, गेमर, lover.com, ये सब। प्लीज डोंट यूज ऑल दिस फनी मेल IDs. इफ यू डू नॉट हैव एन ऑफिशियल मेल ID, क्रिएट अ वन। आज के दिन आप पहले अपने एक ऑफिशियल मेल ID क्रिएट कर दीजिए। आई वुड सजेस्ट यू, सिंस यू आर डूइंग योर BMS, तो आप आपका नाम और BMS करके ऐसा कोई मेल ID क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पारस। ओके, सो पारस BMS2021@gmail.com, आर्या BMS2021@gmail.com, okay, Adila BMS2021@gmail.com. This would help me to identify whether my students are sending me project or I'm getting project from someone else. Last year, few of the students have sent me their project using their cousin's mail ID, their parents' mail ID, their siblings' mail ID. I don't want that. Please make sure you're using your official mail ID. Google पे एक अच्छे सा मस्त create कर लीजिए. It takes hardly 5 minutes. For any doubts related to the project, you can ask me during the lectures. Strictly do not call or message me for any doubts relating to the project. Last date, actually I thought was 10th of this November, कि 10th November last date रखती हूँ, क्योंकि आपका vacation start हो जाएगा और आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैक्सिमम 2 दिन जाएगा। मैक्सिमम क्यों बोल रही हूँ, एक दिन आपने डेटा कलेक्ट किया, उसको सॉर्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, ओके, तो दूसरे दिन आपको मेल करना है तो कुछ चेंजेस
करके आपको मेल करना है तो यू कैन डू दैट, राइट? सो आपको मैं 10th नवंबर देने वाली थी लास्ट डेट, बट कंसिडर कि कुछ स्टूडेंट्स ने अभी लेक्चर नहीं ज्वाइन किया है, कुछ स्टूडेंट्स का एडमिशन लेट हुआ है, तो मैंने लास्ट डेट 20th नवंबर रखा है. I think that much time is sufficient, students. Can you please reply me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hardly, it's a, I think it's a child work, you know, school going students भी ये सब कर लेते हैं, एक दिन में कर लेते हैं. फिर भी मैंने 20 days का आपको टाइम दिया है. एक्चुअली 20 days कैसे, अभी आपको ऑलरेडी आज ही बता दिया ना मैंने, 25 days हो गया. ठीक है, तो आपको 25 days का टाइम दिया है, जबकि when you start doing it, एक दिन के अंदर वो हो जाएगा. Failing to submit the project will result into ATKT in that particular subject. I am not going to extend the dates. Please remember one thing, आपको एक ही टीचर को प्रोजेक्ट देना है, लेकिन उस एक ही टीचर को 135 स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट कलेक्ट करना है. ओके, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर मी. एक एक जन का प्रोजेक्ट रिसीव करना, उसे इवेलुएट करना, उसके बेसिस पे मार्क्स अलॉट करना, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी. Okay, very time consuming. Therefore, I request you to please strictly follow the last date. Last date 20th है, उसका ये मतलब नहीं कि सबके सब 20 तारीख को फॉरवर्ड करोगे. ओके, लास्ट डेट 20th से एक्सटेंड नहीं होगा. आपका प्रोजेक्ट कल बन जाता है तो आप कल भी भेज सकते हो, मेरे को मेल कर सकते हो. ओके, यू कैन मेल इट टुमारो ऑल्सो. You can mail it on 1st November, 4th November, 5th November, 10th November, any date. But the last date won't extend. The last date, extreme last date is 20th of November. मैं उस दिन marks entry कर दूंगी and no extra time will be given. Okay. My last instruction, that is instruction number 10, is very important, that you please read the instructions carefully before starting the project. Okay, ये सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना. ये मैं भी आपको जस्ट भेज देती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, ये पूरा फाइल. So you can refer this file and please make sure that you are, you know, sending the project at the earliest. Any questions to me? कुछ पूछना चाहते हो? Nothing, no doubts. No, ma'am, no doubts. Okay. प्लीज डोंट सेंड मी द मैसेज. हाँ, अभी सेशन ओवर हो जाने के बाद में फिर मैसेज करोगे, मैम प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक डाउट था, आई वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन. ऐसा नहीं आना चाहिए मैसेज या कॉल, बिल्कुल भी नहीं. ओके, इट्स नॉट, आई रियली कैन नॉट रिप्लाई टू सो मेनी कॉल्स एंड मैसेजेस. आई रिक्वेस्ट यू कि आपको जो भी डाउट्स रहेगा, ओके, आप लेक्चर के टाइम पे ही पूछेंगे. ओके, so we will start with the answer now. In the last session, students, we have already completed violence against women and we have discussed types of violence, that is criminal violence, domestic violence and social violence. Okay, then uske baad mein we have also referred to another answer which was about type of victimizers. कि यूजुअली कौन होते हैं जो सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, who becomes the easy target for violence, and we have seen so many points in that answer as well. उसके बाद में I think I started with causes of violence against women. I don't know if I have completed this answer. You got to help me. मुझे ये आंसर देख के लग रहा है कि ये आंसर कंप्लीट हो गया है कि why there is violence happening against women. First था money related problem. Okay, since I think this answer is done, I guess. हाँ, आप मेरे को कोई बताएगा प्लीज कि आंसर कंप्लीट हुआ है या नहीं. Where did we stop last time? You have to tell me, यार students, because ये B division वाले तो मेरे को बहुत cooperate करते हैं. They always help me. Last time मैम आप कहाँ पे stop हुए थे? They always help me. Okay, I expect the same from you. Please tell me if this answer is done. Causes of violence against women. एटलीस्ट हाँ ना तो बोलो. मैम एक बार PDF ओपन करके बताओ. अच्छा, ओके. Well, I got to then take the picture because I don't remember. All I know is I've done this answer. Still, I'll just share the notes. ये देखो, दिख रहा है स्क्रीन? गाइस, मैं डाउनलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ना वो बहुत टाइम जाएगा फिर अननेसेसरी. देखो, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, पर्सनालिटी ट्रेट्स, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, एडिक्शन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, okay,
I think this answer is done. नो मैम वो Causes नहीं हुआ है, बस not done. कॉजेस नहीं हुआ है, कॉजेस के ऊपर तक ही आपने पढ़ा है. अच्छा, victimizers हो गया. So we start with the new answer, which is causes of violence against women. Okay, Arya, can you read this? Point number 1, which is money related causes. Violence may take place on account of money matters. For instance, women may be harassed for dowry by husband or in-laws. The violence may be also due to non-compliance of unreasonable demand for money from working wives for gambling, drinking liquor, etc. I think this is one of the major cause of violence against women, dowry, because हमारी country में ये प्रथा बोल सकते हो ये चलती आ रही थी बहुत सालों से. I don't know if it is still practice, and if it is still practice, it is very shameful. All the girls in the session, please don't give dowry. Okay, you are very capable. Don't do that. And all the boys in the session, please be men enough. Okay, to not accept dowry from your gonna be wives. Okay. So money related causes. Point number 1 क्या बोल रहा है? Majorly for dowry. Okay. A woman has been harassed, okay, by her in-laws. Okay. Apart from this, also there are undue demands from most of the men that that they want money from their working wives. Okay. And look at the reasons. Gambling करने के लिए, liquor यानी दारू, okay, hard drinks. उसके लिए है ना, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे आया है. प्लीज कैन यू प्लीज अलाउ मी टू शेयर वन ऑफ माय एक्सपीरियंस, इफ आई एम अलाउड टू शेयर. Yes, ma'am, sure. Okay, so once I was coming to I stay towards east. Okay, और हमारा कॉलेज वेस्ट में है. तो मैं आ रही थी टुवर्ड्स कॉलेज, और ना रास्ते में थोड़ा गर्दी था. ओके, देयर वाज अ लिटिल क्राउड ओवर देयर. So I realized there was this one lady who was badly hitting her husband. Okay, violence is wrong, whether it is done on men or women, whatever, violence is wrong. लेकिन ना वो लेडी बहुत मार रही थी अपने हस्बैंड को. ओके, एंड मुझसे तो रहा नहीं गया, बिकॉज मैंने सोचा चाहे जितना लेट हो रहा है थोड़ा गाड़ी साइड में लगाते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग. ओके, क्योंकि ये तो मौका वापस मुझे मिलेगा नहीं ना देखने का. कॉलेज तो मैं रोज ही आ रही हूँ. सो व्हाट आई डिड इज आई पार्क माय व्हीकल टुवर्ड्स लेफ्ट, और मैं जाके वहां पे जैसे सब कोई भी गर्दी होती है क्राउड का एक पार्ट बन जाते हैं, मैं भी वो क्राउड का एक पार्ट बन गई. एंड आई वाज वांटिंग टू नो कि exactly why she is beating her husband so hard. तो अंदर से तो मैं बहुत खुश हो रही थी, बिकॉज आई डोंट नो, लिटिल बायस टुवर्ड्स women because I myself a woman. तो मैं बहुत, मुझे बड़ा एम्पावरिंग फील हो रहा था. ऐसे लग रहा था वाओ, ये ऐसा नजारा वो भी इस देश में देखने को मिलेगा. सो when I asked few people around there कि क्यों मार रहे हैं ये अपने हस्बैंड को, पता चल गया कि वो उसके, जैसे वो मार रहे थे तो मालूम पड़ गया कि वो उनके हस्बैंड है. तो मैंने पूछा क्यों मार रहे हैं वो अपने हस्बैंड को. तो उसमें से एक पर्सन ने बोला एक्चुअली शी इज अ डोमेस्टिक हेल्पर, यानी कि वो लेडी है ना, घर घर में जाके काम करते हैं और पैसे जमा करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके. तो उनको ना अपने बच्चों का ट्यूशन फीस भरना था. और उनके हस्बैंड ने क्या किया, जब वो काम पर चली गई ना, तो वो पैसे निकाल कर उसका दारू पी लिया और वो सब वो सब किया. तो इन दैट केस जब वो लेडी को पता चला कि ये पैसे इससे चोरी करके इसका दारू पिया है और वो पैसे उसने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए रखा था, तो मैं और खुश हो गई. और अंदर से मेरा मन कर रहा था तेज चिल्ला के बोलो और मारो लाइक दैट. बट ऑफ कोर्स आई वाज बीइंग इनटू दिस प्रोफेशन, मुझे वायलेंस को एनकरेज नहीं करना चाहिए. लेकिन अंदर ही अंदर आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी एंड एम्पावर्ड कि okay, then she's what she's doing is right. Okay, because eventually that money was for a good cause, but is used by the men for a wrong cause. Okay, so I just thought I should share this experience with you. हमारे देश में ऐसे पता नहीं कितने घर हैं जहाँ पे ऐसे माना जाता है, कोई रिसर्च स्टडी बोलता है कि हर 3 स्लम्स में जो घर होते हैं ना, बैरिक्स में, हर 3 घर के बाद में चौथे घर में वायलेंस हो रहा है. हर 3 घर के बाद में चौथे घर में वायलेंस होने का रीजन ये है कि मैन इज कंज्यूमिंग लिकर. Okay, I think in such cases where a man is not man enough, okay, they need to be made to realize, okay, कि वो
that today time is changing and अब तो औरतों को बिना मतलब मार खाने का वो जो था ना वो स्टॉप होना चाहिए। कितने सालों से अभी भी रूरल एरियाज में कितनी वुमेन्स होंगे जो वायलेंस के शिकार बन रहे हैं। सैडली दे कैन नॉट वॉइस आउट। मुझे बहुत बुरा लगता है कि देश को फ्रीडम तो मिल गया है लेकिन अभी भी इन सारी चीजों में हम बहुत पीछे हैं। वी रियली नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। So point number one is money related causes. That for money, the woman is becoming an easy target for, and therefore, this is one of the reason for violence. Let us see point number two, which is personality traits. Traits का meaning क्या होता है? Type. Okay, हम बोलते हैं इसका trait ऐसा है, इसका trait ऐसा है। आप फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन स्किल्स को ऑलरेडी स्टडी कर रहे हो। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, राइट? सो पर्सनालिटीज के वजह से भी डिफरेंट, कुछ मैन होते हैं ना बहुत सस्पिशियस होते हैं, शक करने वाले होते हैं, अनरीजनेबल होते हैं। अनरीजनेबल यानी बिना मतलब। ओके, सेडिस्ट, उन लोगों को पता है क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? यू कॉल देम एज सेडिस्ट। ये सेडिस्ट कौन होते हैं? जिन्हें ना किसी को मारकर, उन्हें तकलीफ देकर खुशी मिलती है। When you derive your happiness by causing harm to someone else, okay, that those people are called as sadist. हमारी कंट्री में बहुत सारे सेडिस्ट हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे आदमी हैं जिन्हें ना औरतों के ऊपर हाथ उठाकर प्राइड फील होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये करके they have become a men. Okay, and I think that is kind of a license to them कि अगर मैंने अपनी वाइफ को मारा मतलब I am a man. Okay, I don't know if you watch web series much. मैंने recently विद्या बालन का 31 या 32 minutes का documentary movie देखा था, which in the name is Nutcut. Okay, very nice. If you get time, you please. It is there on the Woot app. Okay, तो वूट ऐप में मैंने मूवी देखी थी। डॉक्यूमेंट्री है, 31-32 मिनट्स की है हार्डली। नटखट नाम है वो सीरीज का। नॉट इट इज नॉट सीरीज, इट इज अ मूवी। ओके, सो वो मूवी में ऐसे ही दिखाया है कि कैसे शी इज teaching her son to become a wise man. Okay, I think a lot many mothers have to start taking the responsibility of making their son a man enough. Okay, let us see how it is written in the textbook, that is personality traits. Okay, Arya. The personality traits may compel a person to indulge in violence against women. Some violence-prone personality traits include possessiveness, over-suspiciousness, passionate, irrational, immoral, jealous, and unjust. For instance, over-possessive or over-suspicious husbands may doubt their wife's integrity and may subject her to unwarranted violent behavior. I hope you agree to this. Textbook is not writing something very new. टीवी में आप बहुत सारे सीरियल्स या मूवीज में देखते हो कि कैसे हस्बैंड्स ओवर पोसेसिव होते हैं, अपने वाइफ के इंटेग्रिटी, उसके कैरेक्टर पे डाउट करके उनके ऊपर वायलेंस करते हैं। एंड आई थिंक दिस इज द सेकंड मेजर रीजन फॉर, आई फील कि ये मेजर रीजन नहीं है। मेजर रीजन क्या है पता है? हमारी थिंकिंग। ओके, जो कि वक्त बदल गया है, हम खुद को मॉडर्नाइज बोल रहे हैं। वी आर इंडस्ट्रियली वेरी एडवांस्ड कंट्री। वी आर हैविंग सो मेनी प्रोफेशनल्स, doctors, engineers, chartered accountants. The country is into the race of making bullet train and पता नहीं क्या क्या। We are doing so many things when it comes, हम मेडिकल में भी बहुत कंट्रीब्यूट करें। ऑल ऑफ दैट इज फाइन, ओके, बट हमारा थिंकिंग ओके इज समवेयर still not I think logical. Okay, मैं हमारे में सबको नहीं इंक्लूड कर रही हूँ, मैं उनको इंक्लूड कर रही हूँ जो लोग जिनकी समझ बराबर नहीं है। आई थिंक 2+2 को 4 ही बोलना चाहिए, राइट? 2+2 को अगर कोई 5 बोल रहा है ना, उसके थिंकिंग में प्रॉब्लम है। ओके, सो देयर आर लॉट मेनी मेल out there who doubt the integrity of their wife. Okay, this is very very wrong. Okay, so because of which they are doing violence against them. And I guess जितने मेल गलत है ना, उतने बहुत सारे फीमेल्स भी गलत हैं। वो लोग है ना वायलेंस होने के बाद ना उसे झेलने की आदत डाल देते हैं। ओके, दे कंसिडर इट दैट
it is their duty as a wife to tolerate, which is again wrong. Okay, that should not happen. Okay, every women should stand for their rights, should not remember one thing, आपको आपके पेरेंट्स के अलावा कोई भी हाथ नहीं लगाना चाहिए. एक्चुअली मैं ये स्टेटमेंट को थोड़ा और अच्छे से बोलना चाहती थी कि पेरेंट्स को भी नहीं मारना चाहिए, बट फिर भी ओके, जस्ट फॉर द सिंस यू ऑल आर क्वाइट अभी यंग हो, देयर माइट बी एन एंकर ब्लड इनसाइड यू, तो ठीक है, पेरेंट्स पेरेंट्स ने हाथ उठाया तो नो प्रॉब्लम, दे आर योर क्रिएटर्स, राइट ना, दैट इज फाइन. आपको आपके पेरेंट्स के अलावा कोई भी टच नहीं करना चाहिए, एंड यू आर रॉन्ग इफ यू आर टॉलरेटिंग दैट. Okay, so far we have discussed 2 points. Number one was money related causes, and number two was personality trait. Okay, now let us take the next one, which is I guess there are so many points. We'll take something interesting. Okay, we take this one, that is point number 4, which is stressful situation. Okay, Arya. Violence against women can take place on account of stressful family situations. For instance, the children may not behave properly and may even bring disgrace to the family through wrongful acts. In such a situation, the father may be stressed and blame and bash his wife for no fault of her. I think it is a very I don't know if it is happens at your house, but it is very common कि अगर बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है ना, और अच्छा पढ़ रहा है या कुछ अचीव कर रहा है, तो यूजुअली द फादर इन द फैमिली सेज बेटा किसका है या बेटी किसकी है. Okay, however, if the child is into some wrongful act, okay, वो गलती, वो कुछ अगर गलत काम कर रहे हैं, तो इवेंचुअली फादर पता है वो लोग ना बहुत कन्वीनियंटली ऐसे बोल देते हैं कि मैं तो काम पे जाता हूँ ना, मैं तो जॉब करता हूँ, घर पे कौन रहता है, घर पे तुम रहती हो. तो लाइक दे टेल दिस देयर वाइफ. तो कुछ भी बच्चा अगर गलत करता है ना, तो सीधा सीधा ब्लेम वुमेन, उनकी मदर के ऊपर किया जाता है, एंड वुमेन इज ब्लेम्ड फॉर द सन और द डॉटर्स रॉन्गफुल एक्ट. आई डोंट नो आपके घर में ऐसा हुआ है या नहीं, लेकिन बहुत घरों में ऐसा हुआ है. आप कुछ अच्छा करते हो तो फादर टेक्स द क्रेडिट, आप कुछ गलत करते हो तो यू ऑटोमेटिकली बिकम द सन एंड डॉटर ऑफ योर मदर. Okay, and then there is a violence against her. यहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिखा है blame and bash, मतलब उन्हें blame करना, उन्हें bash करना. I guess सुना ही होगा आपने ये चीजें, कोई बहुत नई बात नहीं है. दैट यूजुअली एनीथिंग रॉन्ग दैट हैपेंस, द मदर इज द फर्स्ट वन टू पॉइंट, पीपल टू पॉइंट द फिंगर ऑन. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज कंडक्ट योर सेल्फ wisely, because there are many people out there who would want to point out your parents, okay, for their upbringing. तो आपके बिहेवियर, आपके कंडक्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, तो बहुत कन्वीनियंटली लोग हाथ उठाते हैं आपके पेरेंट्स के अपब्रिंगिंग के ऊपर. डोंट गिव देम दैट चांस टू से दैट. ओके, एंड प्लीज मेक श्योर दैट योर इंटेग्रिटी, आपका कंडक्ट, ओके, आपके मदर के इंटेग्रिटी से बहुत जुड़ा हुआ है. okay? Moving on to point number 5, which is male dominance. I'm not asking you whether there is any doubt, because I think the topic is quite general. यहाँ पे कुछ ऐसा डाउट जैसा नहीं होना चाहिए. मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपना कुछ व्यू पॉइंट्स इसमें शेयर करते हो, तो आप कुछ इनपुट्स देते हो, तो वुड बी वेरी हैप्पी टू नो फ्रॉम योर साइड व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस ऑन दिस. So we move on to point number 5, which is male dominance. All right. Violence may be due to male dominance over females. There are a number of cases where women are abused and assaulted by the males to show their dominance. They may try to prove that they are always right, and if a female tries to correct them, then that female may be subject to violence. Yes. So as I just said you, it's a patriarchy society. यहाँ पे आदमियों को ऐसा लगता है that if they beat their wife, okay, they become men. Okay, so this is another reason that being dominant in nature, okay, they easily put their hands on their wife. Okay, and if any female is trying to correct, अगर कुछ inputs देती है, कुछ opinion होता है, वो अगर शेयर करती है,
So again, it is a male ego is affected, and then again the violence is taking place. So this is male dominance. Of course, this is another reason why women is becoming a victim of violence. अभी जितने लड़कियां सेशन में है ना, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी. Y'all are educated, y'all are literate, okay? Y'all are very capable. Firstly, say no to dowry. Do not encourage dowry. Secondly, please not let any men hit you. Okay, I have been seeing so many abusive relationships. Okay, into this profession, I am connected to so many of my students who are also sometimes victim of abusive relationships. Do not let any man hit you except your parents. Okay, actually, parents should also not, but then okay, since they are the creator, they have that rights. Okay, तो पेरेंट्स के अलावा कोई भी आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए. वी हैव टू चेंज द टाइम. ओके, आई थिंक द करंट जनरेशन, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, मेरे को बहुत होप्स है आप सभी लोगों से. आप ही नहीं, आपके एज के कितने लोगों से, बिकॉज y'all are very, I think assertive, y'all are very thoughtful. I also feel that the current generation is very straightforward. थोड़ा इंटॉलरेंट भी है रॉन्ग चीजों के लिए, जो कि होना चाहिए. एंड बिकॉज आई थिंक सोशल media is getting more popularity, and you have that a weapon with you, that you can post the things on the social media platform. Okay, I guess there is a lot of awareness. Okay, तो बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें अभी, क्योंकि आप लोग सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, तो ये एज के जनरेशन के लोग काफी स्मार्ट है. ओके, एंड ऐसा ही होना चाहिए. ऑल यू नीड इज टू बिकम मोर थॉटफुल. ओके, इंसान को इंसान इंसान के जैसे ही ट्रीट करना अगर हम स्टार्ट कर देना, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट जेंडर दे बिलोंग टू, फीमेल, ट्रांसजेंडर, लेस्बियन कम्युनिटी, गे कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी के रहने दो, एक इंसान है. Okay, you understand that human community के हैं, you should treat them like a human being. I think the current generation is having that kind of thought process. And मैं काफी अगर आप एक पोल ले लो, ओके, मैंने काफी पोल कंडक्ट किया है पहले भी, मुझे मालूम है कि मैक्सिमम वोट्स या मैक्सिमम लोगों का ओपिनियन, स्पेशली द करंट एज, ओके, दे आर वेरी वाइज. एज आई सेड यू, 2+2 को 4 बोलना चाहिए. ये वो जनरेशन है जो 2+2 को 4 बोलती है. ओके, एंड I hope it continues like that. The session might get over, hence I'm not reading the next points. And the answer is also very simple. So the next point in the textbook is addiction. Okay, so there are male who are intoxicated to alcohol or drugs. Okay, and because of which their emotional balance is poor. Okay, drugs के बाद, substance abuse के बाद कोई अपने होश में नहीं रहता है. Okay, so they behave violently towards female, including physical assault and sometimes even rape. Okay, so I think alcoholism and substance abuse. मैंने काफी लोगों को देखा है सोशल मीडिया पे, काफी बॉलीवुड स्टार्स को भी देखा है सामने आकर बोलते हुए कि क्या हो गया, ड्रग्स ही तो है. ओके, व्हाट इज इट सच अ बिग, इट्स नॉट अ बिग डील. Why you are making it as a national news? Okay, you switch on to the TV, कोई भी प्राइम टाइम देखो, नॉन प्राइम टाइम देखो, कोई भी न्यूज चैनल लगा लो. आई थिंक नाउ आज के इसमें आर्यन खान का एकदम टॉप लिस्ट पे उनका न्यूज आते रहता है. Okay? मैं ना किसी के बारे में कुछ कमेंट नहीं करूंगी, बट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग. ओके, व्हाट इज रॉन्ग इज ऑलवेज रॉन्ग. यू कैन नॉट जस्टिफाई दैट. ओके, तो अगर इलीगल है ड्रग्स तो वो इलीगल है. ओके, वो नेशनल न्यूज पे इसलिए आ रहा है ना, ताकि एक अपॉर्चुनिटी मिला है सिस्टम को ये बताने के लिए, irrespective of whose son you are or whose daughter you are. Okay, if you are doing something wrong, law is equally going to treat everyone. ये लॉ आपके लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है, आपको भी वही सजा काटनी होगी जो बाकी लोग काटते. I guess this is in fact, media should have a strong coverage to such kind of news and should communicate its audiences that law is equal for everyone. Okay.
Well, my next point in the textbook is overexposure to dark media. I think there are TV serials which are made जहाँ पे दिखाया जाता है कि औरतें घर का काम कर रही हैं और अगर अनुपमा is the famous TV serial running nowadays जिसमें she is a housewife, okay. और वहां पे ऐसा दिखाया गया है ना, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया को देख देख के कुछ औरतों को ऐसा लगता है नहीं वो तो बेचारी सहन कर रही है, मुझे भी सहन करना चाहिए, but this is wrong. Okay, so TV serials should be made or movies should be made which is empowering women. पिंक जैसी पिक्चरें बनाओ, दंगल जैसी पिक्चरें बनाओ, फिर सुल्तान जैसी पिक्चरें बनाओ, है ना, जहाँ पे आप मर्दानी जैसी पिक्चरें बनाओ जहाँ पे आप लड़की को एम्पावर कर रहे हो. ओके, ऐसी पिक्चर्स में या फिर डेली सोप्स एकता कपूर की जो सीरियल्स हैं, ऐसे सीरियल्स जहाँ पे एक वुमेन को ना बहुत वीक दिखाया गया है, सिर्फ घर के ही काम में उनका कंट्रीब्यूशन होता है. आई थिंक सच media is such dark media is only making women very weak. Okay, generally teenagers and youngsters are involved in this type of violence. हाँ, जहाँ पे आप ऐसी पिक्चर या सीरियल्स देखते हो जहाँ पे वायलेंस है ना टुवर्ड्स वुमेन इज जस्टिफाइड, तो वो यंग जनरेशन या टीनेजर्स देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि हम भी कर सकते हैं, टीवी में हो रहा है तो हम भी कर सकते हैं, which is not correct. I think media should be more responsible and movie makers and TV serial makers should be even more responsible. मुझे तो यहाँ पे नहीं, मुझे तो उससे भी आपत्ति है वो जो नहीं टीवी में दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट्स जहाँ पे यूटेंसिल्स क्लीन करना है या टॉयलेट क्लीन करना है या घर क्लीन करना है, तो आप मॉडल जो लेते हो वो हमेशा लड़की को क्यों लेते हो? अगर आप बेबी एड्स देखो, जॉनसन एंड जॉनसन का कोई भी बेबी एड देखो, मदर को ही क्यों लेते हो? व्हाई यू आर नॉट शोइंग द फादर? घर के काम में वो आज तक विम बार, व्हील, निरमा, ओके, ये सब तो जब टीवी में ऐड आता है, व्हाई ऑलवेज फीमेल्स आर देयर, व्हाई यू आर नॉट यूजिंग मेल मॉडल्स? मुझे तो उससे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हाउस होल्ड वर्क इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू फीमेल, इट इज also even the male should be doing it, because today women are also going out and working. So that means okay, household chores are just not restricted to female. TV में अगर ऐसा दिखाओगे तो लोगों को वो लगेगा ना सच से करके, and they start getting influenced. Okay, so media should be more responsible towards this, and that's how you send a very strong message outside, right? So these are few points in your textbook, which is the major causes of violence against women. We have seen so many points. इसमें आपको कुछ और भी ऐड करना है तो आप कर सकते हो. Today I thought I'll be taking another answer. No worries, आपने बोला complete नहीं हुआ है तो मैंने ये आंसर complete कर दिया. Any difficulty in the answer, students? No, ma'am. There's only one point in the session. What about Nazia, Megha,